Today's topic is the airspace. You see the various kind of challenges to the community. Like during 1919, the aircrafts were just started. World War first happened, then Second World War, technology advancement took place. The mostly developed countries started this aviation industries. Those aircrafts, earlier it was the state aircraft, the military aircraft dominance during the time of First World War and the Second World War. Then after that it was realized, yes, now we switch over to the commercialization of the airspace. Earlier it was used to for the security purposes. No doubt still it is being used for the security purposes, but now the greater focus is towards the commercializations and as well as the dominance of that country. If the country particularly is having more the aircraft industries, more aircrafts, then obviously that country has dominance. Now what they have realized, yes, it has very much potential, and by letting the other countries to use their own airspace and to earn the money in lieu of that permission, it means these countries are earning the money also by letting off the permission to the other countries aircraft to pass over their territory. समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने कल भी बताया था, सपोज दिस इज ए कंट्री, दिस कंट्री beneath it, इसके नीचे have the treasure, minerals, that is their property, right? The state has exclusive right over it. Same way, over it, you have the space. Apart from this country, there the territorial water, 12 nautical miles under law of sea. Then the exclusive economic zone, 200 nautical miles. Though up to 12 nautical miles you have exclusively right, but it doesn't mean the other country has no right of navigation. In the exclusive economic zone, you have certain rights, limited rights, like the excavations, oil extractions. आपने देखा होगा कि कभी ऑफ शोर पे जाके या न्यूज़ में या टीवी पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऑयल जो कंपनीज हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना, सी के अंदर. तो सारा का सारा वो सर्टेन राइट्स हैं. साउथ चाइना सी पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना अपना डोमिनेंस दिखाता है. तो ये जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, कल को टाइम आएगा कि आपको जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज हैं, आपका कल हम करेंगे आउटर स्पेस, जहाँ से एयर स्पेस खत्म हो जाता है वहाँ से आउटर स्पेस शुरू हो जाएगा सर, ठीक है. और वहाँ पे देखेंगे कि जो आने वाला जो टाइम है वो ज़बरदस्त. अभी तो टेस्ला और दूसरी जो कंपनीज हैं इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, स्पेस एक्स और इस तरीके की जो प्राइवेट सेक्टर्स ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया है. तो आज हम उस पर नहीं टच करेंगे कि जो आने वाला टाइम है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा. कैसे you have, being a sovereign country, you have very much right not to allow the aircraft of the other country over your airspace. Or certainly there are some places like President House, the defense establishment, where you will not allow any aircraft to pass over it. But these are the restricted area. The other, you have the airstrips, airways, like you have the national highways ना, तो the same way the airstrips, ठीक है ना. तो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो जो एयर लेन्स होती हैं उनसे ही आप जा सकते हो, ठीक है. तो इस तरीके से आपने किसी कंट्री को अलाउ नहीं किया, लेकिन वहीं पे यूएस में बैठे बैठे उनकी जो साइबर कमांड है, जो ये आउटर स्पेस जो कमांड है, तो वो देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है. तो विदाउट गोइंग, जस्ट ड्यू टू द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट्स, दे आर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड. तो सी द नेक्स्ट एरा विल बी ऑफ this satellites. Or obviously mostly developed countries have their own satellites. अभी हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी टेस्ट किया था 2017 में, आई होप सो. तो इस तरीके से वी आर द फोर्थ कंट्री आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना, ठीक है. तो वो कल हम देखेंगे उसमें किस तरीके से आने वाला टाइम का सारा चेंज होगा.
अरे यू आर एंगेज इन योर लॉ एंड ऑल दिस थिंग्स, दिस साइंटिस्ट दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स, ठीक है। तो यहां आपका ये जो मैंने बताया है, जो आपका ये वाटर टेरिटोरियल वाटर है, इसके ऊपर का भी जो स्पेस है, जो एयर स्पेस वो भी आपका ही है, क्योंकि ये लैंड के लिए माना जाएगा तो इसी तरीके से ऊपर से फिर आपका एयर स्पेस भी आपका ही माना जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को परमिशन दोगे तो ऑब्वियसली विल चार्ज फॉर दैट, आप चार्ज भी करोगे, ठीक है ना, उससे अर्निंग भी होगी। तो मैं कुछ आपको एक दो डाटा भी बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रीज अर्निंग भी करते हैं इस चीज से, यू माइट नॉट बी अवेयर अबाउट इट। तो यहां पर हुआ क्या कि जो फर्स्ट 1919 की बात है, ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर एयर नेविगेशन बनाया गया, ICN। तो यहां पर ये बेसिकली पेरिस में हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि उन्होंने देखिए जब तक कुछ ही कंट्रीज के पास एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, और फाइनली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें मिलिटराइजेशन बहुत ज़्यादा था, तो मिलिट्री पर्पज के लिए एयर स्पेस यूज होता था। लेकिन अभी आपका उसके बाद ये जो कंट्रीज थी जैसे डेनमार्क, जर्मनी, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनाया, क्योंकि जिसके पास जो चीज होगी वो उसी के बारे में बात करेगा ना, ठीक है ना। युगांडा थोड़ी बात करेगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इतने पूर कंट्रीज हैं कि उनके पास जाके मुश्किल से बहुत बाद में एयरक्राफ्ट आए हैं, किसी ने जो सेकंड हैंड का लीज दे दिया उसके बाद, समझ रहे मेरी बात आप। तो जिसके पास कुछ होगा वो उसी के बारे में, उसकी यूटिलिटी के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रियलाइज किया गया, और यूएसए के इनिशिएटिव, यूएसए ने इनिशिएटिव लिया इस पे कि देखिए यूएसए काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री यू कैन से। तो यूएस ने ये उनके इनिशिएशन पे 55 कंट्रीज को इनविटेशन दिया, और फाइनली 54 कंट्रीज ने ये शिकागो जो है यहाँ पर ये कन्वेंशन हुई, मीटिंग हुई, और वहाँ पे इन्होंने तैयार किया इसको, ये शिकागो कन्वेंशन। जो आपका एयर स्पेस, एयर लॉस से जो डील करता है वो आपकी शिकागो कन्वेंशन है। शिकागो में हुई थी, इसलिए जहाँ भी जो भी कन्वेंशन होती है, जो भी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, उसी के नाम पे उसको डाल देते हैं, तो ये शिकागो कन्वेंशन से पॉपुलरली नॉन एज, ठीक है। और इसी के अंदर आपको ये ICAO जो बनाया गया आपका मॉन्ट्रियल कनाडा, तो वही एज यूजुअल आपको पता ही है कि जैसे ये वर्ल्ड का मैप है भाई, यहाँ पे आपका US है, तो इसके ऊपर यहाँ कनाडा है, कनाडा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो आपका कनाडा, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है आपका ICAO, इंटरनेशनल आपका सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ICAO जो ये हैंडल करता है सारे इश्यूज आपके, और ये बनाया किस लिए गया था, ये इसलिए बनाया था कि सभी कंट्रीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एयर नेविगेशन के लिए, ठीक है। और जो इसके सिग्नेटरीज हैं वो अलाउ करेंगे, और सबको ऑपरेशन, अब देखिए कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कंट्री कम है, सिटीजन किसी भी एयरक्राफ्ट में आगे ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एयर इंडिया आ रही है यूके से या आपका वाशिंगटन से, तो उसमें सारी इंडियन ही बैठेंगे, एज ए टूरिस्ट भी आते हैं। तो वहाँ पर अगर कहीं पे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, तो बहुत सारे इश्यूज बन सकते हैं, सेफ्टी एट स्टेक हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन साउंड करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और आपने देखा होगा कि हर कंट्री का भी अपना एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे DGCA है इंडिया में, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। तो अगर कहीं पे किसी की लैंडिंग या टेक ऑफ में दिक्कत हो जाती है, तभी एक कमेटी बैठ जाती है, और DGCA कम इनटू द एक्शन, और वो इन एयरक्राफ्ट कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। तो जो इंटरनेशनल सिनेरियो में सिविल एविएशन में जो सिक्योरिटी है वो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। अगर एक छोटा सा पक्षी भी अगर टकरा जाता है ना जहाज से, एयरक्राफ्ट से, तो इमीडिएटली उसके बहुत सीरियस लेवल पे इंक्वायरी हो जाती है। कभी कभार तो ऐसे देखा है कि जो पायलट्स हैं वो भाई साहब सो गए हैं, ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं, समझ बात आपको। तो किसी तरह की कोई भी इमीडिएटली जो DGCA है वो एक्शन में आ जाता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, और स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट एक्ट भी है, वो एयरक्राफ्ट एक्ट अलग होता है, वो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सिक्योरिटी के वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ब्रॉडर जो ये आपका ICAO है, ये आपका एक डायरेक्शन देता है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। तो वो भी गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, नहीं तो क्या करते हैं कि दूसरे फिर एयरक्राफ्ट को ये उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। तो आपने देखा होगा इंटरनेशनल लॉ में क्या है कि जो मेजोरिटी का एक रोल होता है कि आइए इंटरनेशनल लेवल पे आइए इकट्ठे होकर और एक वायबल एक पॉलिसी बनाते हैं। तो कन्वेंशन वही है,
तो यहां पर आपके इकोनॉमिकली, अब जैसे इकोनॉमिकली मैं आपको बताना, आप सोचोगे इकोनॉमिकली का कैसे क्या है। मान लिया जैसे ये इंडिया है यहां पर ये, और इसको जाना है आपका सपोज ईरान में, ये ईरान है यहां पे और ये पाकिस्तान है, और इसका एयर अगर हमारे पास यहां से अगर वी हैव सपोज गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, तो हम यहां से सीधा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ऐसे जाएंगे। अगर ये सारे कंट्री, बीच वाले कंट्री बोल देते हैं नहीं हम इंडिया को अलाउ नहीं करेंगे हमारा एयर स्पेस, तो हमारे कंट्री को फिर क्या है कि या तो इस साइड से जाना पड़ेगा या ऐसे घूम घाम के जाना पड़ेगा। तो उससे एक तो क्या है, पैसेंजर का टाइम ज़्यादा खराब होगा, फ्यूल जो है कंजम्पशन ज़्यादा होगी, और इससे बड़ा नुकसान होता है, स्टेट को भी नुकसान होता है, और जो ट्रैवलर है उनको भी नुकसान होता है, और जो कंट्री प्रोवाइड करती है उसको भी नुकसान होता है, क्योंकि उसको जो एयर स्पेस का चार्ज मिलना था वो नहीं मिलेगा, फिर वो दूर से जाएंगे। जैसे अभी कई बार देखा होगा कि आपने अगर आपको यूक्रेन जाना है और सर्टेन कंट्रीज उसको बंद कर देती हैं अपना एयर स्पेस, तो अपने एयरक्राफ्ट को दूर से जाना पड़ेगा, तो वही जो टिकट 30,000 की है वो 60,000 की हो जाएगी। सुने बात, एक मैंने यहाँ पे देखा था इसमें कि जैसे पाकिस्तान का है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि बोइंग 737 जो चार्जेस करते हैं $580 इसके एयर स्पेस को यूज करने के लिए, ठीक है ना। अब वो जो उसका भी एक फार्मूला है, वो उसमें तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरेस्ट कि एयरक्राफ्ट कितना बड़ा है, पैसेंजर्स की क्वालिटी, उसका वेट कितना है। जैसे आप कार भी लेते हो, आपकी मोटरसाइकिल लेते हो, तो उसका वेट, चेसिस, सारा कुछ होता है उसमें स्पेसिफिकेशन। ऐसे एयरक्राफ्ट में भी पूरा स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है ना। और वो कितने आपका जो नॉटिकल माइल्स है वो ट्रैवल करता है उस आप पर्टिकुलर कंट्री के एयर स्पेस से, ठीक है ना। तो वो सारे पैरामीटर्स बना के तब ये चार्जेस डिसाइड होते हैं। तो जैसे इसका बताया कि ये 580 आपका जो है $580 इसने चार्ज किए एक उससे। तो आप देखिए कि पाकिस्तान के मैं देख रहा था 11 रूट्स हैं, और इन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए एक बार तो 2 ही रूट्स खोल रखे थे, बाकी बंद कर दिए थे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया इंडिया ने, ठीक है ना। तो इंडियन जो था, इन्होंने इंडिया के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था, और एक बार तो इन्होंने काफ़ी बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बंद कर दिया था। तो इस तरीके से इनके लॉस की जब बात आई तो इन्होंने जनरली 400 जो फ्लाइट्स थी ना वो मिस हो गई थी इनके पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोज होने की वजह से, और इसकी वजह से इनको 688 करोड़ का मिलियंस 100 मिलियंस का इनको नुकसान हो रहा था, और 688 करोड़ का नुकसान हुआ। और इंडिया को भी जब इसको बाईपास करके दूसरे उससे लंबे रूट से जाना पड़ रहा था, तो इंडिया को भी 500 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उस नुकसान को वो इंडिया के लिए इतना बड़ा, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी ह्यूज इकोनॉमी एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो लॉस बहुत बड़ा था। तो अब आप सोचेंगे कि हम लॉस खा के भी, कंट्री का क्या इंटरेस्ट होता है कि लॉस खा के भी और स्टिल हम अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दे दूसरे, तो उसमें वो डिप्लोमेटिक उनकी पॉलिसीज आ जाती है, उनका स्टैंड आ जाता है। अगर कोई अब बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने किया तो ऑब्वियसली वो खुद भी और वर्ल्ड को भी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई वी आर एट द लॉगर हेड्स, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया, इन्होंने पाकिस्तान सॉवर्निटी का वायलेशन किया, इन्होंने पाकिस्तान एयर स्पेस का जो वायलेशन किया, और इन लिeu ऑफ इन काउंटर इफेक्ट हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए तो वो शायद मिडिल ईस्ट में गए थे, तजाकिस्तान है कौन सी कंट्री, तो तभी भी इन्होंने बंद कर दिया था। ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट गए तभी भी उसमें बंद था, तो हमने दूसरा रूट लेके जाना पड़ा। तो ये चलता रहता है। और जैसे मैं अगर इजराइल की बात करूँ तो इजराइल, जैसे इजराइल के आसपास सारे जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ को जो उसके हैं वहाँ पर इजराइल परमिशन नहीं देता अपने एयर स्पेस के लिए। इजराइल हालांकि उसको लॉस हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार फाइनेंस से ज़्यादा आपकी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, आपको जो स्टैंड है, सिक्योरिटी है, दैट प्रिवेल्स ओवर दिस फाइनेंशियल इश्यूज़। एक बार स्टॉप कर। तो इन दिस वे द Israel is not letting its space to the Arabian countries. In lieu of that, he might be losing the finance, but they are having their more focus because their foreign policy is like that. Because they have fought the 3 war with these countries, then how they will allow their aircraft to cross over their territory? ठीक है ना? तो obviously the foreign policy, the security is at topmost. The finance comes later. As far as you see, recently there was a news that there was the Japan sent its aircraft
to provide the humanitarian assistance to the Ukraine. The Indian authority did not allow to land it within the territory of India. Then this issue was raised by the Japan in their media. The foreign the spokesman of the foreign affair ministry, we are not against the humanitarian assistance to the Ukraine. Already we have also supplied some assistance to the Ukraine. There is a one issue. We have not criticized the Russia also, because Russia is a good ally of us. That is a part of the broader foreign policy. But on the humanitarian ground, we have also sent some assistance in terms of food, in terms of clothes, in terms of medicines. These are the lighter form of the assistance. The same thing was doing the Japan, but it was the Japan was doing in their military aircraft. So they were supplying all these things to the military aircraft, and the India did not allow it. Just they have said, because it might give different message to the world, because that same thing could have been done by their civil aircraft rather than the state aircraft or military aircraft. So we are not against any kind of humanitarian assistance. So see, each word carries a lot of weightage under the international law. So the diplomats always prefer to use the very lighter words instead of the heavy words. आपको पता है ना, स्टेट एयरक्राफ्ट जो शिकागो कन्वेंशंस है, इसमें यही है कि आप उसके ऊपर से एयर स्पेस यूज कर सकते हो, फिर आप उसमें लैंड कर सकते हो, उनके पैसेंजर दूसरे जो कंट्री के पैसेंजर उतार सकते हो, वहाँ से ले सकते हो. तो ये आपके बायलैटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं. जब भी कोई हमारे हेड के स्टेट जाते हैं या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी जो फ्लाइट्स उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बहुत कम हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो MOU साइन करते हैं और दोनों कंट्रीज फिर एज पर द शिकागो कन्वेंशंस वो एक दूसरे को परमिट करते हैं. सुन रही है आपको बात? तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चलता है. तो हमने यहाँ पे बात की स्टेट एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रेवेन्यू एयरक्राफ्ट, कस्टम एयरक्राफ्ट, पुलिस एयरक्राफ्ट. तो वो उनके ऊपर ये शिकागो कन्वेंशन लागू नहीं होगी. ये जो सिविल के जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर लागू होगी. सुनाई बात आपको? और आपने देखा भी होगा कि जब भी आपका अगर कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट दूसरे कंट्री के, जैसे अभी पीछे पाकिस्तान का हो गया था, हमारा क्रॉस कर गया था, तो उसमें हमने उसके लिए एपोलॉजी भी की कि यस, जैसे जहाज को क्या होता है कि रेडियस वाइज जैसे ऐसे टर्न लिया, तो कभी कभार क्या होता है कि देखिए वो बहुत स्पीड में चलते हैं मिलिट्री एयरक्राफ्ट, तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा उनके एयर स्पेस को इन क्रॉस करके और वापस ऐसे आ गए हो. तो इमीडिएटली क्या होता है कि वो कंट्री एम्बेसी के थ्रू अपना जो प्रोटेस्ट है वो रजिस्टर करवाते हैं रिस्पेक्टिव कंट्री जिसने उसका एयर स्पेस वायलेट किया हो. तो दोनों में आपको ये समझना है कि जो आपका सिविल शिकागो कन्वेंशन किसके ऊपर लागू होती है और किसके ऊपर लागू नहीं होती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है. तो अल्टीमेटली इसका यही है कि जितना ज़्यादा अगर ये हर कंट्री एक दूसरे को अलाउ करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर ठीक रहता है, तो उससे जो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगी. हर कंट्री को आपको जो रेवेन्यू भी मिलेगा, और जो सबसे बड़ी बात है जो पैसेंजर्स हैं उनको एट द लो कॉस्ट आपको ट्रैवलिंग मिलेगी. सो एयर स्पेस से अभी आगे चलेंगे हम आउटर स्पेस की तरह. वो कल हम बात करेंगे कि आउटर स्पेस कैसे पूरा का पूरा आप कैसे डेब्रीज, और बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो कल का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो कल हम 11 बजे मिलते हैं. तो विद दिस वी आर ओवर विद टुडे टॉपिक.